Yeah, we are discussing about the undue influence. So, what we discussed, like in the activity of the undue influence, when we are talking about the undue influence, it is being told that it has been given by the two modes. Okay, पहला एक तरीका होता है जहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को इन्फ्लुएंस करता है and the party who is having a dominant position over another party. And in that place or in that phase, the party who is at the undue influence, that party is influencing another person to do certain kind of the activity. Okay, वहां पे the activity of the undue influence is being used. एंड द सेकेंड कंडीशन हमने ये डिस्कस किया जहां पे ये होता है कि वन पर्सन इज having the fiduciary relationship with the another person and the person who is being influenced by the undue influence दिमागी हालात ठीक नहीं है ड्यू टू द परमानेंट इंजुरी टेम्पररी इंजुरी और ड्यू टू द मेंटल इलनेस ऑफ द ओल्ड एज ओके सो ये गया आपका section 16 undue influence. Now comes section 17, which is about the fraud. Fraud is basically the any kind of activity or any of the following act committed by a party to the contract or with his convenience or by his agent with an intent to deceive the another party thereto or his agent or to induce him to enter into the contract which is not true by one does not believe to be true. इसका क्या मतलब है? सिंपल सी चीज है. फ्रॉड मतलब द एक्ट ऑफ द फॉल्सिफिकेशन, जहां पे आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि ये चीज गलत है, आपको समझ में आता है कि आप जो कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, यू आर डूइंग एक an act which is unlawful in nature, which is illegal in nature, which is unauthentic in nature. But even though after knowing that act you are doing is a fraudulent act, you are still doing that activity. That is called the fraud. Got it? So when we are talking about the fraud, वहां पे देखिए the two person can do the fraud, either the person itself or the agent of the person. और जिसको मतलब टू whom the fraud is being done, जिसके लिए फ्रॉड किया जा रहा है, either that person can be the victim or his agent or her agent can be the victim. क्योंकि यूजुअली देखिए आप जब कोई भी तरह का ना बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई भी तरह का बिजनेस एग्रीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हर समय ये जरूरी नहीं होता कि आप खुद जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन करते हो, है ना? अगर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपके पास बहुत अलग काम ही होता है ना, तो आप हर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तो खुद नहीं जा सकते. देन व्हाट डू यू डू? यू सेंड योर एजेंट, आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हो टू डू दैट काइंड ऑफ द एक्टिविटी और to agree to do an agreement upon the fraudulent, to do an agreement upon the contract or to sign the agreement, right? आप अपने तरफ से किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव करके भेज देते हो टू डू दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सिमिलरली the party who is doing the fraudulent activity, that party is also a party with whom you have decided to enter into the contract, है ना? So there is not always necessary that the party who is doing a fraud, that party is always doing the activity by himself. Because when it is a company or it is a office, then it consists a number of the staffs, a number of the employees. जहाँ पे उसके पास ना बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं. एंड इट इज प्रेटी क्लियर कि हमेशा जो ओनर होता है वो खुद जाके सारा कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन नहीं करता है. सो इवन इफ देयर इज द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, इट माइट बी डन बाय द ओनर और बाय द person who is directly entering into the contract or by the representative
or the agent of the owner. Got it? So, coming to the part of the fraudulent activity, we are going to ask that what do you understand by the fraud? Okay, fraud means the active concealment of a fact one having knowledge that belief of the fact. मतलब आपको कोई चीज पता है बट फिर भी आप वो चीज छुपा रहे हो। आप जानबूझ के किसी के साथ, मान लीजिए यू आर सेलिंग ए बिल्डिंग टू समवन, आप किसी को, यू आर वर्किंग इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं एंड देयर इज वन ऑफ योर स्टाफ, मतलब आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई एजेंट है जो कि जिसी के थ्रू आप सारे घर बेच रहे हैं, राइट? देयर इज अ पर्सन हु हैज कम टू बाय ए फ्लैट और बाय एन अपार्टमेंट। ओके, आप घर बेचते हैं, वो बंदा या वो जो भी द पर्सन हु इज कमिंग टू यू, दैट पर्सन वांट्स टू बाय ए हाउस। वो आपको आके बोलता है कि चलिए भाई साहब, मेरे को एक घर की जरूरत है, बताइए क्या कर सकते हैं, मेरे को घर दिखाइए। तो यू आर टेकिंग हिम टू ए प्लेस, शोइंग हिम इन ए हाउस कि देखिए ये घर खाली है, आप अगर चाहे तो ये घर ले सकते हैं। सो आपसे पता है कि जो घर आप उसको दिखा रहे हैं ना, टू बाय दैट हाउस, वो घर अच्छा कंडीशन पे नहीं है। बट आपने क्या किया है, जानबूझ के, इवन दो घर का जो मतलब रूप है वो सारा टूट गया है, घर बहुत पुराना है, बहुत गंदा कंडीशन पे है, घर का सिक्योरिटी सही नहीं है, घर पे पानी निकल रहा है, घर का कंडीशन बहुत खराब है, बट आपने क्या किया, फॉर द सेलिंग पर्पज ऑफ द हाउस, घर को कलरिंग कर दिया हो, ताकि घर बाहर से तो चमक रहा है बट अंदर से खोखला है, घर में कुछ है ही नहीं, मतलब किसी भी मोमेंट वो टूट सकता है ना? तो यहाँ पे आपके पास जो आपका मतलब आता है, द पर्सन हु वांट्स टू बाय द हाउस, उसको घर पसंद आ गया, उसको तो रियलिटी पता ही नहीं कि घर इतना गंदा कंडीशन में है। तो उसने जब आपको पूछता है कि इज द हाउस एट ए गुड कंडीशन, क्या मैं ये घर ले सकता हूँ, क्या ये घर लेने के लिए, रहने के लिए अच्छा कंडीशन पे है, इवन दो यू नो दैट द हाउस इज एट ए डेंजरस पोजिशन, घर में बहुत सारे खराबी है, घर सही नहीं है बेचने के लिए, इवन दो आफ्टर नोइंग दिस स्टिल यू डिसाइड टू सेल द हाउस, इसी के बाद भी आप जानबूझ के, यू नोइंगली conceal the fact that the house is not at a good condition and आप उस बोलते हो कि आप ये घर ले सकते हैं, this house is at a good condition to buy। तो बताइए यहाँ पे क्या आप सही काम कर रहे हैं? नो, यू आर डूइंग द wrongful activity over here, बिकॉज आपको पता है कि घर खराब है, फिर भी यू आर कंसीलिंग ए फैक्ट, आप कोई फैक्ट को छुपा रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो कि हाँ घर सही कंडीशन पे है, एंड दैट पर्सन टू हुम यू आर सेलिंग द हाउस, वो क्या कर रहा है, आपके ऊपर बिलीव करके, ट्रस्टिंग योर लाई, आपका झूठ को वो सच समझ के आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, आपको पैसा दे रहा है टू बाय दैट हाउस। सो इजंट इट कम अंडर द एक्टिविटी ऑफ द फ्रॉड? द आंसर इज यस। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, ए प्रोमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एनी तरह का प्रोमिस जो कि विदाउट इंटेंशन ऑफ द परफॉर्मेंस बनाया जाता है। मान लीजिए एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, जस्ट लेट्स कंसिडर आई एम हैविंग ए बॉयफ्रेंड। आज मान लीजिए मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तो मैं क्या करती हूँ ना, उसको प्रॉमिस करती हूँ कि देखो अगर तुम मुझसे शादी, तो मतलब मैं, मतलब आई वॉन्ट टू मैरी यू एंड ऑल, मैं उसको शादी का वादा, एंड आई एम टेलिंग हिम कि अगर तुम अपना ये वाला प्रॉपर्टी मेरा नाम पे कर दोगे ना, देन आई एम गोइंग टू मैरी यू, या फिर आप अपना ये इतना पैसा मुझे दो उतना पैसा मुझे दे दो, फिर मैं तुम, तो जो बंदा है वो तो बेचारा पागल है, उनका समझ ये नहीं, उसने क्या यकीन करता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इसने कभी मुझे झूठ नहीं बोलेगी एंड ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। तो व्हाट माय बॉयफ्रेंड डज कि उसने उसका जो प्रॉपर्टी है मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिया, एंड आफ्टर गेटिंग द प्रॉपर्टी मैं क्या बोलती हूँ उसको कि चलो मैं तुमसे अब शादी नहीं करूंगी, मैं और किससे शादी। तो हियर द एक्टिविटी ऑफ द
transfer of the property, is it valid in nature? Is it a free consent? No. The answer is it is the activity of the fraudulent activity. क्या? क्योंकि यहाँ पे मैं किसी को कोई भी तरह का प्रोमिस करती हूँ जो कि मेरे को पता है दैट प्रोमिस इटसेल्फ इज रॉन्ग, एंड पहले दिन से डे वन से व्हेन आई एम डूइंग दैट प्रोमिस टू द अनदर पर्सन, मेरे दिमाग में ऑलरेडी ये है, मेरे को पता है दैट आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म दैट प्रोमिस, मैं वो प्रोमिस पूरा नहीं करने जा रही हूँ, ये मुझे पता है ऑलरेडी, बट फिर भी मैं वो प्रोमिस क्यों कर रही हूँ? फॉर माई ओन बेनिफिट. सो द प्रोमिस which has been done fraudulently is called a false promise. And when the promise is false or fraudulent in nature without the intention to perform it, then that is called the activity of the fraud. तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? Any other act fitted to that device, any such act or omission, the law specially declares to be fraudulent. ऐसा कोई एक्टिविटी है which has been declared by the law to be fraudulent. जैसे कि मान लीजिए द गेम लाइक देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ द गेम्स व्हिच आर प्रोहिबिटेड इन इंडिया. ओके, कुछ कुछ तरीके का जैसे कि पैसा लगाना, बेड जीतना, ये सारी चीजें इंडिया पे प्रोहिबिट किया गया है. दिस थिंग्स हैज बीन कंसीडर्ड एज इलीगल. तो अगर आप किसी के साथ जानबूझ के फ्रॉडुलेंटली उसी को मना के ऐसा कोई एग्रीमेंट पे एंटर करते हो जो कि इंडिया पे प्रोहिबिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, and the front person with whom you are doing that kind of the agreement or contract, that person has no knowledge about this, then that activity is called the fraudulent activity in nature. बताइए सही है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने फ्रॉड के अंदर क्या क्या समझे? पहला समझे when there is any kind of the activity जहां पे आपको पता है कि वो चीज गलत है, even after knowing the real fact, you are hiding the fact to the another party. आप जानबूझ के कोई चीज किसी से छुपा रहे हो. एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट. दूसरा पॉइंट क्या हमने समझा कि आपको पता है इसका कॉन्सिक्वेंस गलत ही होने वाला है, बट फिर भी आप वो काम क्यों कर रहे हो? फॉर योर ओन बेनिफिट. बट तो सामने वाला जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या एग्रीमेंट कर रहे हो, उसको नहीं पता कि कॉन्सिक्वेंस इतना बुरे होने वाला है. वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, बट इवन आफ्टर नोइंग द कॉन्सिक्वेंस इज गोइंग टू बी वेरी बैड विथ हिम और हर, स्टिल यू आर एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ दैट पर्सन फॉर योर ओन बेनिफिट. तीसरा क्या हमने समझा? आप कोई प्रोमिस करते हो किसी को. फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रोमिसिंग यू टू सेल माई हाउस टू यू एंड इन रिटर्न आई एम आस्किंग यू फॉर ए मनी. मैं बोलती हूँ कि आप मुझे अभी 50 लाख रुपया दे दीजिए, मैं पैसा मिलने के बाद आई एम गोइंग टू गिव माई हाउस टू यू, मैं अपना घर आपके नाम कर दूंगी. तो यहाँ पे द काइंड ऑफ द प्रोमिस आई एम डूइंग टू यू इज टोटली फ्रॉडुलेंट इन नेचर. अगर मेरा दिमाग में ये इंटेंशन है कि नहीं, मैं मेरा घर आपके नाम करने जा ही नहीं रही हूँ, आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू सेल माई हाउस टू यू, मेरे मन में दूर दूर तक ये सोच भी नहीं है कि हाँ मैं अपना घर आपको देने को सोच रही हूँ, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू ए फॉल्स कमिटमेंट कि मेरे को तो पैसा चाहिए, आप पैसा भेज दो, उसके बाद मैं पैसा लेके भागा ही नहीं रहेगा. झूठ चीज गलत चीज बताया. जैसे कि मैंने आपको बोला हूँ कि देखिए मेरा ऐसा इधर उधर फ्लैट है, मेरा इतना प्रॉपर्टी है, आप मुझे इतना पैसा दो, उसी के बदले में आपको उतना दूंगी. बट बाद में पता चलता है कि मैंने आपको जितना प्रॉपर्टी का पेपर दिखाया था वो सारा फ्रॉड था. मैंने आपको फ्रॉडुलेंटली आपसे पैसा ले लिया और पैसा लेके भाग गया. So these kind of the activities are considered as the fraud, जहाँ पे आइदर आप कोई फैक्ट को छुपाते हो या फिर आप जानबूझ के कोई गलत स्टेप लेते हो जो कि सामने वाला को इस बात का दूर दूर तक अंदाजा तक नहीं होता है कि वो आगे जाके फंसने वाला है. क्लियर? So that is the activity is called the fraudulent activity. Then misrepresentation. मिसरिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है?
जहां पे देयर इज द मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टीज, क्या होता है? द पॉजिटिव assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true but though he believes to be true. मिसरिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? सिंपल सा चीज है, जैसे कि मैं आपके सामने कोई फैक्ट रखे बता रही हूँ और मेरे को पूरा यकीन है कि मैं जो चीजें आपके सामने बता रही हूँ ना, वो सच है, वो सही है, बट सच में देखा जाए तो ये गलत। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने आई एम टीचिंग यू द सब्जेक्ट ऑफ द लॉ, लॉ का कोई स्पेसिफिक सेक्शन का मैं गलत इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ आपके सामने, एंड बट मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने उस चीज को सही तरीके से पढ़ा नहीं, मेरे को लगता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो सही, दैट इज द राइट, बट मैं जो समझ के जिस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, सच में देखा जाए तो गलत है। आपको तो पता नहीं है सही क्या है, गलत क्या है। मैं आपको गलत चीज पढ़ा रही हूँ एंड मैं खुद ये मानती हूँ कि वो जो गलत चीज में वो सही है, वो सच है करके, बट बाद में पता चलता है कि मैं खुद जब पढ़ी थी तब खुद ही मैं गलत ही समझी थी वो चीजों को, राइट? सो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन। मेरे को लगता है या फिर मेरा ये यकीन है कि मैं सही कर रही हूँ, मैं सही बात बता रही हूँ, मैं सही काम कर रही हूँ, बट सच में देखा जाए कि मैं जो कर रही हूँ होता है, अगर मैं जो कर रही हूँ दैट इज अनरियल और दैट इज अनऑथेंटिक और दैट इज इलीगल और दैट इज नॉट अप्रूव्ड, देन आपके साथ मैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हूँ वो भी ऑब्वियसली अनऑथेंटिक हो, जेन्युइन सी बात है ना? सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है? एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी व्हिच without an intent to deceive gains an advantage of the person committing it or one claiming under him by misleading another to prejudice of claiming under him. Okay, for example, one person is working at certain place or certain company. Okay, तो यहाँ पे someone is taking the wrong benefit of that particular person, but the person who is doing the service, that person believes it to be true. मान लीजिए मैं कंपनी का कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरा जो सीनियर अथॉरिटी है, मेरा जो बस है, मैं उनके लिए कोई काम फ्री ऑफ कॉस्ट, बट उसके लिए आई शुड हैव बीन पेड एक्स्ट्रा। मुझे इस बात का अंदाजा या मुझे इस बात का कोई नॉलेज भी नहीं है कि मैं जो काम कर रही हूँ उसी के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया, नहीं पता, बट मेरे सीनियर को भी नहीं पता, नहीं ये काम फ्री में होना चाहिए, मान लीजिए, है ना? तो यहाँ पे ऐसे बेनिफिट मिल रहा है, बट उसको नहीं पता कि मैं जो काम कर रही हूँ उसी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है करके, ना भी मेरे को पता है कि मेरे को मेरे काम के लिए एक्स्ट्रा चार्ज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम दोनों जिस मिसकंसेप्शन पे काम कर रहे हैं ना, दैट कम्स अंडर द misrepresentation. Okay, so there is a small gap between the misrepresentation and the fraud. मिसरिप्रेजेंटेशन पे क्या काम गलत होता है, बट द पार्टी थ्रू whom द वर्क इज being डन, जिसके थ्रू ये गलत काम होता है, उसको ये सच का पता नहीं होता है कि द एक्ट व्हिच इज दैट पर्सन ही और सी इज डूइंग, दैट इज नॉट एन ऑथेंटिक वर्क और दैट इज एन इलीगल एक्ट। उसको ये चीज का पता नहीं होता है कि मैं जो कर रही हूँ या फिर मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, उसको नहीं पता होता, बट वो क्या करता है, वो बस करता है क्योंकि उसको लगता है कि वो सही काम कर रहा है ना? मेरे को कॉन्सेप्शन है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, बट मैं जो कर रही हूँ वो गलत होता है, दैट इज कॉल्ड द मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड में क्या होता है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ, आई नो दैट, एंड इवन आफ्टर नोइंग दिस फॉर माई ओन बेनिफिट, आई एम यूजिंग माई पावर or I am doing that certain kind of activity with the intention of wrongful benefit. So that activity is called as the fraud in nature. So हमने ये जो सारा का सारा क्राइटेरिया डिस्कस किए ना,
तो अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्री कंसेंट, कोयर्सन, ऑनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, अगर ये 5 चीजों का प्रेजेंट है ना, इफ देयर इज द एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग साइन, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड एज द इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और उसको द कॉन्ट्रैक्ट विल बी voidable in nature. Okay, and yes, there is one more concept to make you understand. There are two things. One is void and another is voidable. You may ask me, ma'am, what is the difference between void and void? Means the contract which is void ab initio, जो शुरू से ही गलत है, जो शुरू से ही लीगली अनऑथराइज्ड है. बट voidable इज जहां पे कॉन्ट्रैक्ट का अथॉरिटी या लीगलिटी डिपेंड्स अपॉन द फ्रंट पर्सन, डिपेंड अपॉन द पार्टीज दैट दे वांट टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट or they don't want to accept the contract. They want to continue the contract or they want to nullify the contract. जैसे कि the marriage below the 18 years of the age, 18 साल से अगर किसी का शादी कर दिया जाता है, that is illegal in India. तो अगर आप किसी के साथ, आप 18 साल से कम हो एंड किसी के साथ शादी कर रहे हो, that marriage contract is void in nature. वो किसी भी तरीके से सही नहीं हो पाएगा. बट मान लीजिए देयर इज एन एक्टिविटी ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, वह है कि इज दैट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और voidable? द आंसर इज दैट इज voidable इन नेचर. वहां पे देयर इज द ऑथेंटिसिटी और फ्रीडम ऑफ द बोथ द पार्टीज. दे डिसाइड कि अभी हमको ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है या इसी को एंड करना है. That depends upon the decision of the parties कि इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या इसी को बंद करते हैं, है ना. This is the difference between the void and voidable. voidable में कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने को या फिर क्लोज करने का ऑप्शन रहता है इन नियर द पार्टीज. बट void is जहां पे आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता and that contract is totally illegal in nature. That is called the void contract. Got it? So this is still section 19, and in the next class we are going to understand the mistake and the next provisions onwards. This is all for today. See you all in the next class. Thank you.